Parul, we can start. I was thinking that whether the Facebook Live has started or not. So It has started. Okay, ma'am. Okay. नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल साहू जी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ टू दिस ग्रैंड फिएस्टा व्हिच इज नवशक्ति दुर्गोत्सव फ्रॉम एनर्जीएस फैमिली। हमने बड़ी अच्छी तरह से 4 दिन 4 देवियों के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बात की और लाइफ स्किल्स के बारे में हमने देखा। ये 9 दिन 9 शक्तियां 9 लाइफ स्किल्स फ्रॉम आवर दुर्गास, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। एंड टू बिगिन विद आई वुड वांट हम लोग पहले गायत्री माँ का थोड़ा ध्यान करें। पढ़ने लगते भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। With the blessings of Gayatri Ma and Durga Ma and all the 9 Devis, here we are starting with our session. And to begin with, I would like to invite our Pratishtha and Prerna, the very high-spirited, lively and strong, our Ma, our President, Dr. Vaidehi Marathe, for her welcome address. Thank you. Thank you so much, Parul. Today's speaker, Dr. Sapna Sharma ma'am. Chairperson of the day, Dr. Reena Saha ma'am, principals and coordinators of all the colleges, and my dear young friends. I am Dr. Vaidehi Marathe. I'm the president of Nagpur Obstetrics Gynecological Society, and I welcome all of you to yet another very interesting session on life skills, balancing relationships. This is the day 5 of our Navshakti Durgotsav, which we are celebrating and dedicating to the 9 Shaktis of Ma Durga. Throughout this Navratri, we have planned very useful life skills sessions, and many of you have attended the previous sessions on spiritual awakening, pulling your own strings, battling depressions, and leadership. And we'll have 3 more very important sessions on self-defense, facing life challenges, and know your body. So I request all of you to spread the word so that more and more number of girls are benefited by these very important sessions. I would like to thank today's speaker, Dr. Sapna Sharma ma'am. She's my very dear friend. She's accepted this invitation from us. I am really thankful to you, Sapna, for accepting this invitation and giving your valuable time for today's session. Thank you so much, today's chairperson, Dr. Reena Saha, for accepting to chair this session. We are indebted to you. Heartfelt thanks to all the principals and coordinators without whose support this Navshakti Durgotsav was just not possible. So let's get started. I welcome all of you once again, and let's begin today's session. Thank you so much. Thank you, Vaidehi ma'am. And as we say, in this Navratri campaign, we are going to be doing 3 things, 3 programs. First is Mere Beti, Meri Shaan. And I can't be expressing my gratitude better because my mother always used to say that you are the most precious gift and angels are disguised as daughters. And we have many of our members who have actually, shared their pictures with their daughters. We have our very own Dr. Shehnaz Hussain, who says, let us empower these precious treasures to become leaders of tomorrow. Celebrate daughters. Save our future, save the girl child. Again, we have Dr. Rachita Pahukar, who is proud mom of 2 daughters, who says, nothing makes me more proud than my 2 beautiful, intelligent, and kind daughters. The second program, which we'll be having now, is the Arogya Sutra, which we are giving every day. The 9 sutras of our NOGS and AMOGS Awareness Campaign 2020-2021. And today is the day 5, the Skand Mata.
Now the Skand Mata, the word itself, it can be broken up into two: the Skand and Mata. Skand is the other name for for God Kartikeya, who is the son of Ma. Mata means Ma. So it is devoting her life towards her son and balancing her relationship. And we have chosen for today breastfeeding, which is a commitment and not an option. Mother's milk, mother's absolute affection. Breast milk is the first vaccine for the newborn. Every drop has the capacity to fight diseases. So let us all laugh, sing, dance, and glow, and let the oxytocin flow. That is what is very important. And all of us should encourage, as doctors, as fellow being women, we should encourage breastfeeding for all of us, because it is not a choice which we should make. It is the right of our children to have breast milk. Now coming on to the day 5, that is balancing relationships. Don't just be a taker. Healthy relationships require balance. Give your words and be extra generous with your deeds. It's not something which you find. It's something which you create. So we have today a very renowned speaker who is a TEDx speaker, who is an international counselor, a life coach, motivational speaker, who has counseling skills, is a trainer, and is training people in spiritual parenting, who has a counseling center dealing with de-addiction, who conducts many online counseling sessions, who is a certified psychometric tool accessor, founder and a term president of many associations. The very known Dr. Sapna Sharma. She is an eye surgeon passed out from GNC Nagpur, and she has dedicated her life from the past 10 years in counseling and helping people refrain pain and find confidence. So we'll be talking about balancing our relationships with our partner, with our children, with our family, with our work. And we have Dr. Sapna Sharma to guide us through this wonderful session. So we welcome you, Dr. Sapna Sharma. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Is it possible to change the screen so that I feel? Yeah. Absolutely, ma'am. Yeah, thank you so much. It feels better this way when I can actually see people and then talk to them. Yes, ma'am. And to chair today's session, we have the very dynamic and vibrant Dr. Reena Sinha, who is the course coordinator for many short-term courses, who is tirelessly dedicated her efforts towards women health and hygiene. So we welcome you, Dr. Reena Sinha, to chair this session. And this stage is all yours, Dr. Sapna. And here we have our very speaker guiding us through in balancing our relationships. Thank you, Parul. And very good evening to all of you. Thank you, Vaidehi, for inviting me here. It's always a pleasure. रिलेशनशिप की बात करनी थी आज हमको. रिलेशनशिप की जब बात होती है तो सबसे पहले जो चीज मेरे समझ में आती है वो ये है कि रिलेशनशिप इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट इट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपकी जिंदगी में जितनी खुशी है सारी रिलेशनशिप से आएगी, जितने दुख है वो भी सारे रिलेशनशिप से ही आएंगे. सो इट इज द primary cause of everything which is happening in our life, and that is why relationships are so much important. But interesting बात ये है कि relationships इतने important होने के बावजूद भी उसके ऊपर बात करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए. Maybe we need to plan also certain things in our life which are related to relationship. ये हमारा concept ही नहीं है. मतलब हम करियर के बारे में सोचेंगे, हम पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, हम ट्रिप्स टूर्स के बारे में सोचेंगे,
जितनी चीजें हैं दुनिया में हम सारी चीजें सोचेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में उसके बारे में हम सोचना भी पसंद नहीं करते हैं. एंड दैट इज व्हाई द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कैन टर्न इनटू समथिंग व्हिच व्हिच इज गिविंग यू मैक्सिमम पेन इन लाइफ. इसीलिए रिलेशनशिप को हम देखने का एक नजरिया थोड़ा अलग मैं आपको आज देना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप हमारी सबकी जरूरत है. Everyone, and when we are talking about relationship, it's not just the girl boy relationship or parent child relationship, it's everything. Like we have a relationship with our environment also, so we are always in relation to something. When I know that, when I say that I live in Nagpur, जब मैं ये कहती हूँ तो ये सेंटेंस का मतलब तभी निकलता है जब when I can relate Nagpur is a city in a state of Maharashtra, which is a state in the country called India, and then which is in Asia, then which is on etc etc etc. जब हम ये समझते हैं, which is like, क्योंकि हम बचपन से इतना इस बात को सीखे हैं, तो we don't feel that thing every time. It doesn't process like that, but on reflex level my identity is felt because I'm in relation to something. Otherwise, me in isolation, I don't know. I really don't know what I am. So relationship, when we talk about, we need to understand it's about everything. And when we realize that we are not just existing, we are in relationship with everything around us, I think हमारा एक approach life के लिए change होने की possibility ज़्यादा होती है. So when we look at it from this perspective, let us talk about what are the important relationships in our life. अभी जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप तो सारे ही है, सबसे ही है, but what's closest, most important and most influencing relationships in our life? So to begin with the parents, the siblings, ये शुरुआत में, क्योंकि आप उन्हीं के साथ में आप you start getting a sense of who you are around your parents and your siblings. घर के आसपास जो लोग हैं उनसे आपको एक अपना मैं कौन हूँ वाला फीलिंग आता है. और उसके बाद में अगर आपके साथ में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन है अगर, तो ग्रैंड पेरेंट्स थर्ड इम्पोर्टेंट. लेकिन बहुत ही जल्दी इससे हम निकल कर हम एक चौथे रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप. इन यंग लाइफ फ्रेंडशिप मैटर्स अ लॉट. यहाँ तक कि we start taking every other relationship for granted because we focus so much on the relationship of friendship. Of course, that is also very important relationship. और उसके बाद में जो next relationship जो आती है, which is again very very important, is relationship to your boyfriend or to your girlfriend, a love relationship. And afterwards, if it's you get married, you have husband, and then you have your own children. So that's how the relationships continue. एज के साथ साथ ना रिलेशनशिप के मायने चेंज होते जाते हैं, और कौन सा रिलेशनशिप हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज के साथ चेंज होता है. सो मेनी अ टाइम्स आई हैव पीपल कमिंग टू मी कंप्लेनिंग अबाउट मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता है, या माई डॉटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, शी इज ऑलवेज गोइंग आउट, या मेरा बेटा ऐसा करता है कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है. I always want to tell people that relationship में time frame का बहुत ज़्यादा importance होता है. When a child is born, तो मेरे ख्याल से मदर के जितना important और कोई नहीं होता है उसके लिए दुनिया में. घर में और लोग हो तब भी it's the mother that is the most important person to the child. फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वैसे घर के और लोग भी मैटर करने लगते हैं. वहां पर ये मैटर करता है कि उस बच्चे के लिए कौन प्रेजेंट है. जो प्रेजेंट होगा वो रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो व्यक्ति अगर हमारे आसपास नहीं होता है तो वी फील अनकंफर्टेबल. बच्चा छोटा सा इनसिक्योर हो जाता है, रोता है, कंप्लेन करता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि जब बच्चे को बाहर का एक्सपोजर नहीं होता है और तब उस समय उसको घर के लोग ही सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब हम बाहर जाने लगते हैं तो हमारे लिए फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. न्यू रिलेशनशिप, सेम एज ग्रुप, same type of topic, same type of interest, naturally we feel better in the company of friends. अच्छा लगता है friends के साथ में हमको. लेकिन इतना इंटरेस्टिंग जो फ्रेंड्स होते हैं जिनके लिए हम अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा कर लेते हैं. ये अक्सर होता है कि हमको फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है फिजिकली या वर्चुअली. इस बात पे पेरेंट्स के साथ में बहुत झगड़ा होता है हमारा. लेकिन जब हमारे लाइफ में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आ जाती है तो इंटरेस्टिंगली कई बार हमारे फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस भी कम होता है.
दैट इज द टाइम जब आपके फ्रेंड्स कंप्लेन करने लगते हैं कि आजकल तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो. So understand the how the roles of people keep on changing our life in our life, और किस समय कौन कितना important है उसके हिसाब से we place people around us. जिसको हम importance नहीं देते हैं या जिसको feel होता है कि उसको importance नहीं मिल रहा है, that person is the one who feels bad or sad in a relationship. जैसे आपको अगर suppose if you have a boyfriend or if you have a girlfriend also, when I'm referring to girlfriend, I mean a girlfriend because I think today we need to talk about it that the girls do have girlfriends also, so it's all inclusive. तो आपको जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर कहीं जॉब कर रहे हैं and that person is in the office relationship would be more important to him or her at that moment. Does not mean कि आप उसके दिमाग से निकल गए हो at that moment. या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के और फ्रेंड ग्रुप्स है, तो जब वो उनके साथ रहेंगे तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे. ये इस तरह से जो रोल चेंजिंग होता है, this if we are not able to accept, it is a major cause of pain in relationship. अक्सर ये होता है कि जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें हम काफी पजेसिव हो जाते हैं, and possessive means that we want that person to have an exclusive relationship with us. और जब exclusive relationship आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि we might become very controlling in that particular relationship. तो ये केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में करते हैं. ये पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में करते हैं. मदर्स अगर स्पेशली इफ दे आर नॉट वर्किंग मदर्स, तो उनका पूरा फोकस बच्चों के ऊपर होता है, सो दे एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑल्सो. और अगर वो नहीं मिलने से देन द मदर बिकम्स इनसिक्योर. सो ये हर रिलेशनशिप में देखा गया है कि इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्चुअल placement of a relationship, it is going to lead to problems in our life. तो इसी को हम थोड़ा सा elaborate करके समझने की आज कोशिश करेंगे कि इतने सारे रिलेशनशिप से बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप इज द टॉपिक दैट वी हैव टुडे. कैसे किया जाए बैलेंस? आई मीन इज इट इवन पॉसिबल? तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सबको खुश रखना ये आपकी जिम्मेदारी है. प्लीज अंडरस्टैंड द fundamental basics where relationships go wrong. If I start believing that I am responsible for your happiness, I am going to project all this on you. या अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो आप अपना ये सारी इनसिक्योरिटी मेरे ऊपर लादने वाले हो. Now this is what goes through all the relationships. Parents always complain, my child doesn't do this, my child doesn't do this, my child doesn't study, etc etc etc. और अगर वो अच्छे से बिहेव करते हैं, वो सब कुछ अच्छा करते हैं, तो I'll be happy. So basically I'm projecting the need of my happiness on you. Then in the friends relationship also, if I have a friend, I'm very happy, but I expect my friend to behave in a certain way. The moment I expect my friend to behave in a certain way, it's like saying that if you do like this, if you behave in like this, if you speak like this, मैं खुश रहूंगी. So I am projecting my need on her. और सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लव रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में, कि जब हमको लगता है कि मेरी खुशी इस व्यक्ति की वजह से है, you are inviting trouble big time in your relationship. दो तरीके से है. एक तो ये समझना कि मेरी खुशी उसकी वजह से is also trouble, and I am responsible for his or her happiness is also an even bigger trouble. क्योंकि हम किसी को खुश नहीं कर सकते और कोई हमको खुश नहीं कर सकता. Whether to be happy or not in life is a very very personal choice. Is a very personal choice. मैंने ऐसे कई लोग देखे, जो आपने भी देखे होंगे, जिनके पास सब कुछ होता है बट वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. और ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत कम चीजें हैं but they are just generally happy people. So please think about it. एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम या सभी रिलेशनशिप में, इफ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती हूँ, तो मैं दुनिया में किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती हूँ और किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ. प्लीज आई विल बी स्पीकिंग अबाउट दिस अगेन एंड अगेन. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, इन ऑल अमंग ऑल दिस रिलेशनशिप, आपका अपने आप से क्या रिलेशनशिप है?
what is your relationship with yourself? ये क्वेश्चन है, मैं आपको आज देकर जाऊंगी. प्लीज कीप इन टू कंसिडरेशन एंड आस्क योर सेल्फ वेन एवर यू हैव ट्रबल इन एनी रिलेशनशिप. आपके किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि व्हाट इज माय रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ. डू आई लाइक टू बी विथ माई सेल्फ? डू आई एंजॉय माई ओन कंपनी? व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई सेल्फ? और मुझे अगर मेरा कुछ पसंद नहीं है तो व्हाट कैन आई डू टू चेंज इट सो दैट आई लाइक माई ओन कंपनी. आज हमारे यहाँ पर आप संस्कृति के नाम पे बोलिए या किसी भी नाम से, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि खुद को इम्पोर्टेंस मत दो, दूसरों को इम्पोर्टेंस दो. दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप. ओके, क्योंकि उसका बेसिक हमको किसी ने समझाया नहीं है. बट ट्रस्ट मी, एट द एज ऑफ 50 आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली वन थिंग. इस एक चीज की वजह से मेनी पीपल हैव गॉट देयर मेस्ड अप माइंड्स. क्योंकि अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको सेल्फिशनेस बताया जाता है. अगर हम अपने आप की तारीफ करते हैं तो उसको बहुत डिरोगेटरी नजर से देखा जाता है कि क्या खुद की ही तारीफ करते रहती है हमेशा. सो दिस इज समथिंग, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, टॉकिंग टू योर सेल्फ, अपने खुद के लिए कुछ करना, इसको समहाउ बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता है. And because of that, our relationship with ourselves is always a very questioned thing. कि मेरा खुद से relationship क्या है. एक बहुत interesting experiment मैं करती हूँ जब कभी भी मैं training programs करती हूँ. So I just call people in the front, एक दो लोगों को randomly, and I tell them that okay, tell us about yourself. अच्छा, दुनिया का सबसे आसान सवाल, but turns out to be the most difficult question in this entire world. क्योंकि इनवेरिएबली, और ये एक्सपेरिमेंट चाहे मैं स्कूल स्टूडेंट से करूं, कॉलेज स्टूडेंट से करूं या किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव से करूं, 4 लाइनें होती है सबके पास. माय नेम इज सो एंड सो, आई स्टडी हियर और आई वर्क हियर. एट द मोस्ट दे विल बी एबल टू ऐड टू इट अगर कुछ एक आध अचीवमेंट हुआ है तो. और ये 3-4 चीजें बेसिक बोलने के बाद में दे जस्ट स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग. तो एक अपने आप से करके देखना. इफ यू हैव टू एक्सटेम्पोर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सी हाउ मेनी थिंग्स कम टू योर माइंड. यू विल बी ब्लैंक वेरी वेरी सून. और इंटरेस्टिंगली उसके बाद में उनसे कहती हूँ कि नहीं, आपके पास और टाइम है, आपको और बोलना है. देन दे थिंक एंड देन दे स्टार्ट, okay, so my father is working here and my mother is a housewife, otherwise my wife is doing this and my kids are, and I have to remind them I'm asking about you, there's nothing else about you. आप खुद के बारे में कुछ तो बताइए. And this is how it goes. Then what I do is, then I said, okay, let it be. Then I said, okay, do you have any interesting person in your life? चाहे आपका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी चलेगा जो इंटरेस्टिंग है. कैन यू इंट्रोड्यूस दैट पर्सन टू अस? हम उसको जानते नहीं है, कैन यू इंट्रोड्यूस? एंड ट्रस्ट में इनवेरिएबली वो शुरू हो जाते हैं तो उनको बंद करना पड़ता है कि बस बस बहुत हो गया. दे विल हैव सो मेनी थिंग्स अबाउट, यू नो, ही इज अ वेरी गुड गाय एंड ही इज ऑलवेज हेल्पिंग पीपल, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और उसको ना ये चीज बहुत पसंद आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन आई वांट टू आस्क यू कि ये सारी चीजें आपके बारे में नहीं है क्या? There's nothing else beyond what the world has given you, the name the world has given you, your education qualification someone else has given you, your status, address, whatever it is, your job is given by someone else. अगर ये कुछ नहीं है तो you are nothing. So that is the relationship we carry with ourselves. और जब हम अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, you know what basically means? That basically means I don't know myself. मुझे actually अपने बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है. तो बहुत कम चांस है कि मुझे ये पता हो कि what makes me happy. So I don't know what makes me happy, but I want you to know what makes me happy, and I want you to make your life miserable to make me happy all the time. That's the kind of expectations that we live in. वो होता है ना रिलेशनशिप की, अगर कोई बात कर रहा हो तो अगर हम उससे पूछते हैं कि तुमने उसको बताया कि तुमको क्या चाहिए, एंड द क्वेश्चन, उसको समझना चाहिए यार, उसको समझना चाहिए, एज इफ यू आर डीलिंग विद अ माइंड रीडर, कि जो आपके दिमाग में चलने वाली सारी चीजें समझ जाए और वैसे वैसे बिहेव करे या वैसा वैसा सब कुछ अरेंज करके रखे. एबनॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, डू वी रियलाइज दिस? The killers of all kinds of relationships. Even parents do this to children. Maximum parents have not laid down guidelines कि किस situation में कैसे behavior expected है.
एक्सटेम्पोर बिहेव करते हैं हम लोग. आज मेरा मूड अच्छा है ना, तो तुम अगर साइकिल से गिर गई हो तो मैं बोलूंगी अरे मेरा बच्चा क्यों साइकिल से गिर गया, कम आई. आज मेरा मूड खराब है ना, I'll put it all on your head. So many times I have told you not to do like this and not to do like this. You don't listen to me at all. So it's so difficult for the children also to understand how to behave. But I won't blame the mother because mother has never thought about this. कि बैठ के तो बच्चा जब कभी बाहर जाता है तो कभी उसको बाहर जाने देते हैं, उसको पैसे चाहिए तो पैसे दे देते हैं, और बाकी टाइम उसको इतना सुनाते हैं तुमको तो पैसे की कीमत ही नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड. बट हैव यू लेड डाउन द रूल्स फॉर योर चिल्ड्रन? सो सिमिलरली अभी लाइसेंस के लिए गई थी मैं मेरे बेटी के, एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस. द ड्राइविंग टेस्ट, एक कार होती है वहां पर, उसके स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रख के स्टूडेंट को बैठना है, पूरा कंट्रोल साइड वाले के पास में होता है. आई डोंट इवन हैव एन एक्सेलरेटर विथ मी. वो आपको आगे ले जाएगा 10 फीट पीछे ले जाएगा, एंड यू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस. तो आपको आज ड्राइविंग नहीं भी आता ना, तो प्लीज अप्लाई, यू विल गेट इट. एंड देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि सड़क पे सबने बिल्कुल सारे ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए. एक्सपेक्टेशंस, दिस इज हाउ वी आर लिविंग इन लाइफ. कि जब हमारा नया रिलेशनशिप भी होता है, वी हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, वी आर जस्ट ओवरवेल्म्ड. इट्स अ नाइस थिंग ऑफ कोर्स टू बी ओवरवेल्म्ड. We like a lot of things about them, और वो एक अच्छा बटरफ्लाई वाला फीलिंग होता है पेट में. Everything is very nice. But what do I expect in this relationship? जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या सामने वाला वो है, या क्या सामने वाला भी वो चाहता है, इस बारे में हम कोई सोचना भी नहीं चाहते. So how relationship happens is, मुझे तुम्हारे बारे में 2 चीजें पसंद आएगी, तुमको मेरे बारे में 2 चीजें पसंद आएगी, कोई रैंडम, एंड देन वी इमीडिएटली गेट इनटू अ रिलेशनशिप. उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारी एक कोई फैंटेसी इमेज है हमारे दिमाग में, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, किसी की भी एक, या फ्रेंड की एक फैंटेसी इमेज है हमारे दिमाग में. वो फैंटेसी इमेज में फिर हम इस नए व्यक्ति को ठूस ठूस के फिट करना चाहते हैं. बिकॉज this is my fantasy image and I have loved you, so you have to be like this. And that is where all the problems begin. क्योंकि हमने ये सोचा है कि ये व्यक्ति जो है, जो कोई भी है मेरे लाइफ में, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, एनीवन, दिस पर्सन हैज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे फॉर मी टू बी हैप्पी. मैंने अपनी हैप्पीनेस की पूरी जिम्मेदारी इसके सिर पर दे दी है. सो मुझे खुश रखने में अगर ये पूरी तरह से मिजरेबल हो जाए, मुझे कोई हर्जा नहीं है. But he has to or she has to behave in a certain way. Do we actually understand what relationships are? Do we actually understand कि मुझे क्या चाहिए? Forget about relationships, forget about people. It all begins with boss, मुझे चाहिए क्या? और मुझे क्या चाहिए ये समझने के पहले मुझे ये समझना पड़ेगा मैं हूं कौन. Most of us do not know it. क्योंकि बचपन में हमारी आंखें खुलते ही हमको शब्द सिखाए गए, मम्मा, पापा, ये हमको सिखाया गया पहले. थोड़े से हम बड़े हुए, थोड़ा बहुत हमको कुछ समझने लगा, बेटा ABCD बोलो, A फॉर एप्पल बोलो, हमारे मुंह में वो डाल दिया गया. थोड़े से और बड़े हुए हम तो हमको धक्का मार मार के स्कूल भेज दिया गया. फिर स्कूल में वही चीजें शुरू हो गई, ये पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशंस आने चाहिए, सब आने. इन दिस होल प्रोसेस, चाहे ये न्यू जनरेशन हो, चाहे हमारी जनरेशन हो, चाहे आने वाली जनरेशन हो, no one is encouraging anyone to think about themselves. हम कि बेटा थोड़ा देर बैठ के सोचो तुम कौन हो. नो. करियर चॉइसेस कैसे होते हैं हमारे? We know there is a medicine, there is an engineering, there is a CA and there is a law. ये 4 में से अगर कुछ मुझे मिल जाए ना, तो मेरी तो जिंदगी सेटल हो जाए. Okay? This not just the students think this way, even the teachers, even the parents, everyone is thinking this way. So अब जब हम इसकी बात करते हैं कि करियर की एक एग्जांपल ले लेते हैं. So medicine is a good career, no doubt about it. Engineering is a fantastic career, no doubt about it. Okay? Because most people want to choose engineering as a career, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेकर आपको बात बताती हूँ कि इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर है. हाँ, इसमें MBA भी ऐड कर लीजिए. आप में से जो कोई भी इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर रहा है, वो पक्का MBA की तरफ देख रहा होगा. सो
MBA एक बहुत अच्छा करियर है. So ये है कि if engineering was a fantastic career और medicine और ये और whatever, तो उस करियर का हर व्यक्ति सुपर रिच होना चाहिए था, सुपर सक्सेसफुल होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं. Like we churn out engineers like, इतना तो शायद मास प्रोडक्शन और किसी चीज का होता नहीं होगा इस देश में जितना इंजीनियर्स का होता है कॉलेजेस में से. How many of them are successful? So many engineers are there कि in fact it is the ratio is almost कि कॉलेज, हर कॉलेज में से निकलने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में से केवल 70%, 30% स्टूडेंट जो है वो इंजीनियर बन के निकलते हैं, उनको अच्छी जॉब मिलती है एंड दे डू वेरी वेल. रेस्ट ऑफ द 70% कम आउट एज ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स because they did not have what it needed to understand what actually engineering is. फिर जब हमको जॉब नहीं मिलती है, फिर जब हमको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी एक्सपेक्टेड है, then we start blaming everything and everyone else on this earth. हम ये नहीं सोचते कि जब मेरे ही बैच के 5 लोगों को जॉब मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला. There has to be some reason. ऐसा तो नहीं हो सकता भी अगर नहीं मिलना ना पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिलना चाहिए. But some people are getting and I am not getting. एंड देन उसी टाइम पे कंपनीज ये कंप्लेन करती है, आप कोरोना टाइम छोड़ दीजिए, आप अदरवाइज कंपनीज ये कंप्लेन करती है कि एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स नहीं है, डिग्री वाले बहुत है, एम्प्लॉयबल नहीं है. क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आपको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आई है तो आप उसके इंटरव्यू में क्या बताओगे उनको. सो दिस इज रेलेवेंट टू एवरीथिंग. हमारे देश में कोई भी करियर में पास होना बहुत आसान है. इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपको पढ़ के बैठ के पढ़ना आता है तो आपको पक्का डिग्री मिल जाएगी, आप कोई भी डिग्री ले लो. बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर स्टडीइंग, तो आपका करियर कहां से बनेगा. और जब करियर बने या नहीं ये सवाल आता है तब हम अपने अंदर ना देखते हुए वी ट्राई टू ब्लेम अदर पीपल. कितने सारे लोगों को हम इस चीज के लिए ब्लेम करते हैं, सरकार से लेकर पेरेंट्स से लेकर एवरीवन. वी ब्लेम एवरीवन फॉर दिस वन पर्टिकुलर थिंग इन आवर लाइफ कि हमारा करियर अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ. वैसे आपको एक चीज बता दूं कि अगर इंजीनियरिंग ही अच्छा करियर है तो कई इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 10-10 साल के जॉब के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं. और कुछ पाव भाजी बेचने वाले, क्या कहते हैं उसको, तर्री पोहा बेचने वाले ऐसे हैं जो महीने का 1,00,000-1.5 लाख तो ऐसे ही कमा लेते हैं. सो वुड वी से दैट तर्री पोहा बेचना इज अ बेटर करियर देन ये इंजीनियरिंग? नो, दैट इज नॉट द इक्वेशन. कोई करियर आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है. अगर आपका कनेक्शन आपके करियर से होगा, इफ यू कैन फील दैट फ्रॉम इनसाइड, यू विल डू वेल एंड यू विल प्रोग्रेस वेल. सो अगेन इट कम्स टू नोइंग योरसेल्फ. आपका अपने आप से रिलेशनशिप क्या है? If you do not know yourself practically, trust me, you're going blind. You are absolutely going blind with whatever you are doing. और going blind में there is every chance that you are going to suffer. Relationships, similarly, कुछ relationship हमारे choice में नहीं होते. Our relationship with our parents, oh, that is not something to be, वो हमारी choice में नहीं है. Do they mean anything for us? Now, especially when I'm referring to the young girls, लड़कियों को अक्सर यंग एज में अपने पेरेंट्स पसंद नहीं आती, स्पेशली मदर. दे हैव मेनी इश्यूज विद देयर मदर. पसंद नहीं आते बोलने से अच्छा, दे हैव मेनी इश्यूज विद देयर मदर. जहां तक हो सके दूर रहना चाहते हैं, अपने कमरे के अंदर अपने कमरे का दरवाजा लगा के बंद रख के करना चाहते हैं. How far are we taking this is going to decide the relationship base. सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं आपको कि जो रिलेशनशिप घर के अंदर है, कितना भी हमको तकलीफदायक हो, बट सपोर्ट सिस्टम हमारा वही है. लाइफ लॉन्ग जो घर के दायरे के अंदर जो रिलेशनशिप है, सपोर्ट सिस्टम वही होगा. भले ही आपकी गलती पे आपको डांटा जाएगा, भले ही आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, बट सपोर्ट सिस्टम यहीं से आना है आपका लाइफ लॉन्ग. अनकंडीशनल सपोर्ट अगर कहीं मिलता है तो दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड. अब हमको हमारा फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम रोकने वाले पेरेंट्स, सो वी ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम पेरेंट्स.
ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल यू शुड बी पैली पैली विथ योर पेरेंट्स ऑल द टाइम एंड एवरीथिंग, बट कहीं हम अपना और अपने रिलेशनशिप्स का नुकसान तो नहीं करा ले रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर फिर से एक्सपेक्टेशंस की बात आ जाती है। मैं इतने साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, पेरेंट काउंसलिंग करती हूँ, मैं चाइल्ड काउंसलिंग करती हूँ, और ये रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ऑफ कोर्स, बिकॉज हर पेरेंट ऑलमोस्ट चाहता है कि मेरा बच्चा आइडियल हो। जब मैंने आइडियल बोल दिया ना, उसमें सब आ गया, लाइक आइडियल पढ़ाई में, आइडियल बिहेवियर में, आइडियल सब चीज में होना चाहिए। ये पेरेंट्स के जनरली एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट children also have many a times unrealistic expectations from their parents. So just check yourself which category you fall in, and are your expectations realistic or your expectations are unrealistic. Parents say jo real expectations hai that my parents should provide me whatever I want. जो मुझे चाहिए वो मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ बिना सवाल किए प्रोवाइड करना चाहिए. This is one expectations which I'm seeing in this generation of students. क्यों? मेरा सवाल है क्यों प्रोवाइड करना चाहिए बिना सवाल पूछे? Just because they have given birth to you, just because they love you? Sorry, it doesn't work like that. ये काम ही वैसा करता नहीं है. पेरेंट्स का एक सर्टेन रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आप जब अपने पेरेंट्स के घर से निकलोगे, that day you should be a confident person taking care of your life in good way. ये पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर आज आपको आईफोन नहीं मिल रहा है इसलिए आप खुश नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है. दिस इज योर प्रॉब्लम. एक्सपेक्टिंग दैट उसके पास में वो फोन है, उसके पास में 2 कैमरा वाला फोन है, उसके पास 3 कैमरे वाला फोन है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी देना चाहिए. सॉरी बॉस, ये एक्सपेक्टेशन ही गड़बड़ है. बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स शुरू हो जाए यहाँ पर कि उसकी बेटी को 99% मिले हैं, तुमको भी मिलने चाहिए, इक्वल है ना, फिर एक्सपेक्टेशन है तो दोनों तरफ से रखने चाहिए. फिर एक तरफ से कैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं? फिर आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ में. तो आप भी तो कंपेयर करते हो ना. उसको देखो, उसके घर में देखो, उसकी मम्मी कितना अच्छा टाइप का खाना बनाती है. आप लोग भी तो कंपेयर करते हो, उसको कितना फ्रीडम है. अच्छा, एवरी गर्ल सेज सबके पेरेंट रात को पार्टी में जाने देते हैं. हर लड़की ये बताती है अपने घर में, जबकि जाने कोई पेरेंट नहीं देता. कुछ बच्चे झगड़ा करके निकलते हैं. कोई पेरेंट अपने यंग लड़की को रात को पार्टी में जाने के लिए हैप्पीली भेजता नहीं है. बट यू डू दैट, you compare and you put it the pressure on your parents head. उसके पेरेंट्स देखो, उसके पेरेंट्स देखो, उसके पेरेंट्स देखो. तो जिस दिन वो कंपेयर करने लगेंगे कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, उसके तो इतने मार्क्स आए हुए हैं, तुम कितने बजे सो के उठती हो, वो तो सुबह उठ जाती है, वो स्पोर्ट्स भी खेलती है पढ़ाई के साथ में, तुम तो दिन भर बिस्तर से नहीं उठती हो. तो ये कंपैरिजन जो है वो दोनों तरफ से लागू होना चाहिए. व्हाई इज इट एक्सपेक्टेड कि सारी जिम्मेदारियां केवल पेरेंट्स लेंगे और सारी ऐश हम करेंगे? क्वेश्चन है, सोच के देखिए. एक्सपेक्टेशन में भी कोई मतलब होना चाहिए ना, कुछ दम तो होना चाहिए. हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है उस रिलेशनशिप में. और अगर हमारे मन की बात नहीं होती, हमको परमिशंस नहीं मिलती, हमको चीजें नहीं मिलती, तो वी विल ब्लेम देम फॉर एवरीथिंग, एंड देन वी विल आल्सो ब्लेम देम फॉर द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स इन आवर हाउस. इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि योर पेरेंट्स आर परफेक्ट. कोई भी परफेक्ट नहीं, ना आप ना आपके पेरेंट्स, ना मैं ना मेरे बच्चे, कोई परफेक्ट नहीं है. बट बैलेंस बनाने की जब बात आ रही है तो दोनों पार्टीज को काम करना पड़ता है बॉस. सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन आवर लाइफ, इससे हम बचकर इसलिए रहना चाहते हैं, दूर इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे रिबेल आइडियाज को रोकेंगे, ऐसी हमको फीलिंग आती है. सो वी वांट टू गो आउट एंड we want to do something else. जो हमको पता होता है मन में हमारे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आएगा, इसीलिए तो छुपाते हैं हम. तो अगर हमको पहले से पता है कि इनको पसंद नहीं आएगा और हम छुपा रहे हैं, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं पता है कि ये गलत है या इसमें कुछ तो गड़बड़ है, हमको पता होता है ये चीज. फिर उसका दोष पेरेंट्स के ऊपर क्यों डालना? एटलीस्ट समझो तो बदमाशी कर रहे हैं, मैं बदमाशी कर रही हूँ. Why spoil the relationship with your parents? बदमाशी तो तुम वैसे भी करने वाले हो, करो, दिल से करो. But why spoil the relationship and why blame them for it? उनका काम है तुमको प्रोटेक्ट करना, and they are going to try their best. And trust me, when you become parents, you are going to be even worse than us. क्योंकि क्या होता है, बहुत सिंपल रूल है. मेरे मम्मी ने ना 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. उसके पहले कभी लड़कों से बात भी नहीं की थी उन्होंने, तो उनको ये सब दुनिया ही नहीं पता थी. तो मैं जब घर से बाहर जाती थी तो मेरे माँ को कभी शक ही नहीं होता था, बिकॉज उसने कभी ये सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं था.
बट मैंने गड़बड़ की थी। ओके, मुझे पता था मैंने क्या गड़बड़ की थी। तो जब मेरी बेटियां बाहर जाने लगी तो मुझे कुछ चीजें तो पता थी। सो मेरे दिमाग में चलते रहता था, यार ये ऐसा बोल के गई है ना, पक्का कुछ तो भी गड़बड़ करने वाली। सो दिस इज हाउ आई एम नाउ टुडे, दैट इज लाइक योर मदर माइट बी। एंड now what is going to happen with your generation is, because you have done way too much. Okay, since I'm a counselor, people come and share everything with me. I know the average age of losing virginity has come down to 13 years of age. I know that making out on the first meeting is considered to be absolutely normal. I know that almost everyone smokes, drinks, weed is not considered a drug. ये सारी चीजें मुझे पता है। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? जब आपके बच्चे होंगे ना, यू आर गोइंग टू बी पैरानॉइड, लिटरली। वो बच्चे ने घर के बाहर पैर भी रखा तो आप इतनी तकलीफ होने वाली, बिकॉज यू हैव डन एंड सीन सो मेनी ऑफ द थिंग्स। सो इट दिस इज गोइंग टू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गो, this is going to continue generation after generation after generation. उसके लिए रिलेशनशिप खराब करना जरूरी है क्या? ये सवाल मैं आज आपको देकर जा रही हूँ। पीपल आर नॉट गोइंग टू, सब चीजें हम, एक व्यक्ति की सब चीजें दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आती, और क्यों आनी चाहिए? बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल। डू यू लाइक एवरीथिंग अबाउट योर मदर? डू यू लाइक एवरीथिंग अबाउट योर फादर? सो व्हाई द एक्सपेक्टेशन कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर प्यार ही करना चाहिए पूरा टाइम, 100% टाइम प्यार करना चाहिए उनको, जो भी तकलीफ हो जो भी हो? ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। रिलेशनशिप्स करनी है। अब आप देखो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करते हो, सोच के देखो। उसकी भी बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं आती है। वो बॉयफ्रेंड भी है ना, आपको कई बार बोलता है ये थोड़ा सा लो नेक नहीं हो गया है, ये इतनी छोटी स्कर्ट पहन के तुम जा रहे हो, तो उसके लिए हम सारा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स यही चीज बोलते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। तो ये बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप समझे तो हम कि क्या है ये। All relationships are important in our life. All when I'm saying is parents, siblings. Parents का मतलब है grandparents भी आ जाते हैं। Parents, grandparents, siblings. इसके अलावा जो आपके दोस्त बनेंगे और जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, they are all important. एक व्यक्ति के या एक रिलेशनशिप के आने से दूसरे का इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां पर आप अपने मदर से, अपने फादर से कनेक्टेड नहीं हो, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आपका बाहर की दुनिया में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको जाकर बात करने के लिए जगह ही नहीं बची है। आप अगर कोई गलती करते हो जिसको निपटाना भी है, तो कॉन्फिडेंटली जाके बात करने के लिए शायद कोई जगह ही नहीं रखी है, क्योंकि हमने घर वालों से रिलेशनशिप इतने खराब कर ली। अगेन आई एम सेइंग कि कई पेरेंट्स भी होते जो बिल्कुल समझना नहीं चाहते, डेफिनेटली। बट क्योंकि आज यहाँ पर स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साइड से ही बात करना चाहूंगी कि व्हाट वी कैन डू टू मेक इट ऑल बेटर। सारे तरह के केसेस आते जो तकलीफ होती है मुझे देखकर। यंग गर्ल्स इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि we really feel that this is the one person. Unfortunately हर बार हमको सही व्यक्ति नहीं मिलता है। एक टिपिकल एग्जांपल जो आपको देना चाहूंगी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट इट टू योर लाइफ, बट जब एक यंग लड़की होती है, फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड या कोई लड़का सेक्स के लिए प्रपोज करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की मना करती है। सब नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की मना करती है। अगर वो लड़का सचमुच आपको प्यार करता है, लाइक करता है, तो ही विल रिस्पेक्ट दिस एंड ही विल से आस्क यू कि क्यों नहीं, एंड ही विल रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू से। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि कई बार लड़के इस तरह से यूज करते हैं, सो यू डोंट ट्रस्ट मी ना, सो इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट्स ब्रेक ऑफ दिस रिलेशनशिप। और उस प्रेशर में कई लड़कियां सेक्स के लिए मान जाती है। दिस इज वेरी कॉमन। क्या हम किसी से ये बात कर सकते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप में सही है कि नहीं है? जब हमारे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं होता ना, तो हम एक जो भी रिलेशनशिप होता है उसी को सही मान के उसी के पीछे पड़ जाते हैं। लड़कों के साथ मैंने देखा हुआ है कि कई लड़के ऐसे हैं कि जो लड़कियां उनसे बार बार खर्चा करवाती है और ये कह के कि वो देखो मुझे इतना गिफ्ट देने के लिए तैयार है, तुम तो रेडी नहीं हो उस चीज के लिए, तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। तो अगर क्या उस समय हम किसी से बात कर सकते हैं कि भाई ये सचमुच लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है? बट हम करना नहीं चाहते, क्योंकि
एक अजीब सा डर होता है हमारे मन में कि ये एक रिलेशनशिप है, यही पकड़ के रखना, यही है हमारे लिए। ऐसा नहीं है। वी ऑल हैव मेनी रिलेशनशिप्स, लेकिन हर रिलेशनशिप की एक अपनी जगह होती है। मेरे बच्चों को, लड़कियों को, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को बहुत अच्छा खासा डांटा है मैंने। अब तो खैर दोनों बड़ी हो गई है, बट अच्छा खासा डांटा हुआ है मैंने, और मेरे रूल्स भी रहे हैं अच्छे खासे। बट आई एम श्योर दैट इफ यू आस्क देम टुडे, दे आर हैप्पी दैट देयर वर रूल्स। Most mothers are not very good to their teenage या college going girls. क्यों? क्योंकि अगर मदर सब कुछ आपके मर्जी के जैसा करेगी ना, तो बेसिकली शी कैन पुट यू इनटू डेंजर। ये समझने की कोशिश करो। मेरा बहुत सिंपल रूल है कि जब तक मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, और मैं उसको कभी भी वीडियो कॉल कर सकती हूँ। ओके, वो उसने झगड़ा किया था मुझसे, बड़ी वाली बेटी ने, कि क्या किसी की मम्मी तो करती नहीं। मैंने कहा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। द थिंग इज दैट तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम दोस्तों के साथ एंजॉय भी करो, बट तुम अगर अपना नुकसान कर रहे होंगे तो वो देखना मेरा काम है। सो 3 साल ग्रेजुएशन की, आई वुड कॉल हर एनी टाइम, वीडियो कॉल। सिंपल रूल ये था कि अगर तुमने वीडियो कॉल कहीं पर भी किया है तो तुमको उठाना है। इफ यू रिसीव, आई कैन सी योर सराउंडिंग्स एंड आई कैन सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग और व्हाटएवर XYZ। और अगर तुमने नहीं भी रिसीव किया तो एक बात तो पक्का तय हो जाती है कि तुम ऐसी जगह पे हो जहां तुमको नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज माई रूल। आई एम नॉट सेइंग एवरी मदर डज दैट। शायद आपकी मदर मुझसे बेटर होगी और इतना आपके ऊपर ध्यान नहीं रखती, बट मैंने एक चीज देखा है कि उसकी वजह से दे वर सो कॉन्फिडेंट ऑफ मी कि लाइफ में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी शहर में, दे कैन इमीडिएटली, दे वुड कॉल मी अप, क्योंकि वो हमने रिलेशनशिप उस चीज से बना लिया था। When she cleared graduation, मुझे पता है 21 साल की लड़की हो गई, उसको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मैंने ये काम बंद कर दिया। No, now this I'm not going to keep. अब आगे आगे कुछ साल तक there'll be something decorum in the house कि भैया तुमको घर में रहना है तो घर के जैसे रहो। You live like a house member, don't live like you're living in a hostel. मैं, मेरा कमरा, मुझे तो घर से कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों काम करूं घर में, रोज रोज झगड़ा करना कि मुझे क्यों बर्तन मांजने बता रहे हो। Then you are not living like a house, you're living in a hostel. तो ये जो चीजें होती है, क्या इससे आपका सचमुच नुकसान होने वाला होता है? थिंक अबाउट इट। ओके, आई एम गिविंग यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यही चीजें हैं जिसके ऊपर हम अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहे हैं, और क्या सचमुच ये हमारे लिए जो चीज है ये खराब है कि जो पेरेंट्स हमारे ऊपर रूल्स डालते हैं या ये सब चीजें करते हैं, ये क्या सचमुच हमारे लिए ठीक नहीं है? पसंद नहीं आएगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि फ्रीडम, घूमना अच्छा लगता है और वो करना भी चाहिए, कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन क्या उससे हमारा फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे लाइफ में लोग जो है उनको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब रिलेशनशिप, स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात आती है, तो आजकल लड़कियां अक्सर ये कहती है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या, और इस दोस्ती पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उसको कहा जाता है कि आप मॉडर्न नहीं हो, आप पता नहीं कौन से जमाने के हो, आपको समझ में नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गर्ल्स, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हियर विथ यू। देखो बॉस, नेचर मॉडर्न नहीं हुआ है। ओके, नेचर हैज क्रिएटेड मेल एंड फीमेल विद अ क्लियर पर्पस। मेल एंड फीमेल आर क्रिएटेड क्योंकि आगे की जनरेशन आती रहनी चाहिए, प्रोक्रिएशन होना चाहिए, इसीलिए नेचर बना हुआ है। और वो नेचर को फुलफिल करने के लिए मेल एंड फीमेल हैज टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इसीलिए वो सिस्टम, वो केमिस्ट्री बनाना भी नेचर के लिए जरूरी था। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। जब भी हम किसी अपोजिट सेक्स वाले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे फिजिकली करो चाहे चैटिंग पे करो, लेकिन कंटिन्यूअस हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ अट्रैक्शन होता है। दैट्स, इसमें मेरा आपका साइंस नए पुराने किसी से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज द रूल। तो व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, क्या आप बैलेंस्ड रिलेशनशिप में है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो लड़कों से अपने बॉयफ्रेंड के अलावा कम से कम एक क्लोज फ्रेंड जो लड़का होता है उनकी लाइफ में होता है। मोस्ट ऑफ देम क्लोज फ्रेंड, जो दूसरा क्लोज फ्रेंड लड़का होता है और वो बेस्ट फ्रेंड होता है इस लड़की का। अगर उसके, वो अनफॉर्चुनेटली
ये जितने फोटोज निकाल के अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है उतने ही फोटो निकाल के उस लड़के को भी भेजती है। 2 से 4 अगर इस बॉयफ्रेंड से बात करेगी तो 4 के बाद में तुरंत दूसरे कॉल पे या दूसरे चैट पे शुरू हो जाती। चैट पे कई बार दोनों को एक साथ चैटिंग चलते रहते हैं। You think that is actually being modern? This is basically you are not creating a balance in a relationship. जब आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको कुछ चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ती है। टेम्पटेशंस की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जस्ट इमेजिन, जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग दिस कि आपके फादर जो है आपकी मदर को घर में बिठा के दूसरी लेडी के साथ में बहुत देर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि मेरा उसके साथ में सिर्फ फ्रेंडशिप है। हाउ विल यू लुक एट इट? विल यू लुक एट इट इन अ नॉर्मल वे? कि रात रात भर आपकी मदर साइड में लेटी हुई है और आपके फादर किसी और से चैटिंग कर रहे हैं। थिंक अबाउट दिस। इट इज नॉट नेचुरल। इसमें मॉडर्निटी का कोई लेना देना नहीं है। आज क्यों इतने रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप पे टिक के नहीं रह रहे। वी आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स टू मेक एन रिलेशनशिप वर्क। सो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। अक्सर होता यह है कि जो ये बेस्ट फ्रेंड है, जो लड़का है, जब बॉयफ्रेंड से झगड़ा होता है या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होता है तो सबसे पहला रिलेशनशिप इसी के साथ में होता है। सो प्लीज डोंट टेल मी कि ये सिर्फ हमारा प्लेटोनिक रिलेशनशिप था। प्लेटोनिक होता तो उसको बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी कोई। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आर वी अवेयर? और अगर आपका मानो कोई आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, एक बात और सोचो कि जब आप रात रात भर किसी से चैट करते हो ना, उसका मतलब क्या निकाला जाता है सामने वाले से? सोचो। नंबर 1, व्हाई डू यू फील लाइक स्पेंडिंग सो मच टाइम विद दिस पर्सन? कुछ तो होगा ना। अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो? कुछ तो अट्रैक्शन है ही। प्लस वो भी व्यक्ति यही सोचता है कि रात के समय अगर कोई लड़की मुझसे कॉल पे बात करती है तो नेचुरली आई फील दैट शी इज गॉट फीलिंग्स फॉर मी। इससे कोई बचा नहीं है। इसमें अच्छा बुरा है, वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। दिस इज नेचर। आर वी गिविंग जस्टिस टू द रिलेशनशिप जिसमें हम है? तो ये सोचना तो हमारा काम है। उसके बाद में ये होता है कि जब वो बॉयफ्रेंड गुस्सा होता है, नाराज होता है, तो ये लड़की उसी के ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारा मॉडर्न नहीं हो, तुम पता नहीं किस जमाने के हो, तुम एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो रिश्ते क्या हम चाहते हैं? If we want our relationships to be good, we have to work on our relationship. Automatic कोई रिश्ता नहीं होता है। सब रिश्तों में काम करना पड़ता है। कल अगर आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी किसी से शादी भी हो जाती है तो भी एक चीज याद रखना कि उस रिश्ते को कंटिन्यूअसली फ्रेश बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट ऑटोमेटिकली गोइंग टू हैपन दिस वे। उसके लिए जैसे आज आप करते हो कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए आप अच्छे से तैयार होते हो, दैट एटिकेट हैज टू बी मेंटेन्ड इवन इन अ मैरिज। अदरवाइज ये देखा गया है कि शादी हो जाने के बाद में दोनों को एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। अब क्या दिखाना है, अब किसके लिए तैयार होना है। भाई, दिस वन पर्सन हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू वांट योर हस्बैंड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आप इस चीज का भी ध्यान नहीं रखना चाहते हो कि मैं मोटी हो रही हूँ क्या, कि मैं दिन भर गाउन में पड़ी रहती हूँ क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कैसे भी रहे लेकिन उसको हमेशा सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन रहना चाहिए। इज इट नॉर्मल दैट एक्सपेक्टेशन? तो क्या एक्सपेक्टेशन हम करें? मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा आप गुड़िया के जैसे तैयार होकर उसके सामने नाचते रहो। समय समय पर आप बदलोगे, बट कैन वी हैव द कंसिडरेशन इन माइंड कि भाई मेरा वजन बढ़ रहा है तो लेट मी गो फॉर एक्सरसाइज और डाइटिंग सो दैट आई एम प्रेजेंटेबल टू हिम। क्या अगर सपोज मुझ में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं और मुझे चिड़चिड़ हो रही है और मैं बहुत गुस्सा कर, कैन आई गो फॉर काउंसलिंग सो दैट I will become a better person to live with? जब आप ही खुद के साथ खुश नहीं हो तो अपने पार्टनर ने आपके साथ में हमेशा खुश रहना चाहिए, कैसा एक्सपेक्टेशन? और this is what is called the essence of relationship and maintaining it. प्लीज समझने की कोशिश करिए कि रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप दुनिया में एक तरफा नहीं चलता। आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रिलेशनशिप है तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करने की। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट। ये मत सोचिए मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं। जब आप उल्टा पलट के जवाब दे सकते हो अपने पेरेंट्स को तो आप छोटे बड़े नहीं, फर्क पड़ता है कोई। यू आर इक्वल इन दैट रिलेशनशिप। जब आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, यू हैव टू इंश्योर कि आप अपनी इंटीग्रिटी बना के रखे उस चीज की, ताकि आपको ये रहे कि आप दूसरे लोगों को हमारे अपने रिलेशनशिप में इतना ना घुसने दे कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए।
सो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही डेलिकेट चीज होती है. केवल आपको कोई मिल गया, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपका बेटा हो गया, या आपके पेरेंट्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली नेचुरली रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. एवरी रिलेशनशिप नीड्स टू बी नर्चर्ड, टू बी वर्कड ऑन, और वो करने से देन यू विल बी हैप्पी. बट आई वुड सम अप बाय सेइंग वन थिंग ओनली. कोई रिलेशनशिप तब तक नहीं अच्छा हो सकता जब तक आपका अपना खुद के साथ में रिलेशनशिप अच्छा ना हो. यू शुड बी एबल टू बी हैप्पी. आपको खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने में मजा आना चाहिए. हर समय बोर हो रहा है इसलिए इसको कॉल लगा रहे, उसको कॉल लगा रहे, उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसका व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे हैं. इफ दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दैट मींस आपका खुद से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. पहले उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आपका अपने आप से अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप से रिस्पेक्ट नहीं करते, यू कैन नॉट डू इट विथ anyone in this world. So they work on the relationship with yourself, and then start thinking about how can I make my other relationships better. So I wish you all the best, and thank you so much. Questions? Thank you, ma'am. Thank you for that wonderful and an elaborate talk for relationships and how to balance them, mother-daughter relation, husband-wife, everything. It was tremendous and we totally loved it. And I would like Dr. Reena Saha to give her comments and how did she feel about this talk of yours, the chairperson for today. Good afternoon, everyone. Am I audible? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए. हेलो राजश्री, सुनाई दे रहा है ना? I am grateful Yes, to ma'am. you, Vaidehi, and all your team that you have given me an opportunity to share this important session, which is actually hosted by my, I should say, I follow her, Sapna. Okay, thank you so much. Sapna को पता नहीं होगा कि मैं उसका पीछे. You know, we used to meet at the Upper East place, yeah? Yeah. So she is an acclaimed motivational speaker, spiritual counselor. She guides people in pain and confusion. I have been forwarding her YouTube videos to my friends. She might not be knowing. So the thing which I could capture from her today's session, that relationship satisfaction is subjective evaluation of one's own relationship. आप खुद से कितने खुद को आप कितना importance देते हो? How much you are responsible for your own happiness, and what is the relationship of your own with your own self? I think these are very, very important fundamental issues. Here I also understood from her lecture that the time frame is the most important related to the relationship. शुरुआत में हमको हर चीज मैंने देखा है कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे के लिए उसकी टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा वो बच्चा दूध नहीं पीता, टिफिन नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता, तो मदर्स यूज्ड टू टेल देयर टीचर, बच्चे की स्कूल टीचर को बोलिए कि आप बताइए, आपके कहने से वो खाएगा. उसके बाद में ऐसा होता है कि उसकी बहन उसके लिए उसकी जो सिबलिंग होती है, अगर सिस्टर है तो वो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि उसने जो बताया वो सच. सिबलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है हर बच्चे के लाइफ में. उसके बाद में हो जाता है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड. इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी बच्चे की लाइफ में. अभी मैं स्टूडेंट्स की लाइफ से डील करती हूँ, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, इसलिए मैं भी हस्बैंड वाइफ या अदर रिलेशनशिप के बारे में फोकस करने के बजाय मैं स्टूडेंट्स के जो रिलेशनशिप बैलेंस है उसके बारे में बात करती हूँ. तो कई बार बच्चे आकर के कंप्लेन करते हैं कि मोस्टली मैं जब जैसे वैदेही ने बताया कि आई कंडक्ट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ऑन पर्सनल रिप्रोडक्टिव हाइजीन, तो बहुत बार लड़कियां आकर के जब पूछती हैं कि मैडम वो जो फील होती है आफ्टर हैविंग अ सेक्स विद हर बॉयफ्रेंड, जो एक सिचुएशन आती है कि लड़का पूछता है कि तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है, एंड दे अंडरगो दिस काइंड ऑफ relationship, sexual relation or physical relation, and when the girl misses her period, then she comes and asks ma'am, वो जो feel होती है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, now what to do. तो यहाँ जो प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने पर्सनल हैप्पीनेस को. क्या वो सचमुच में उस पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी थी, या नाउ शी इज ब्लेमिंग
टू हर बॉयफ्रेंड कि उसने मुझ पर अविश्वास ना करे, वो मुझको ये ब्लेम ना करे कि मैं उसको उस पर फेथ नहीं करती, उसको ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए आई अंडरवेंट दिस सिचुएशन। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स की लाइफ में होती है। और जैसे सपना ने बताया कि वो एक के साथ में और पैरेलल रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, तो यहाँ जो उनको बोलना जरूरी है, उनको सच में कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो जो उनको सही गाइड कर सके विदाउट बीइंग बायस्ड, कि ये मेरे से एडवांटेज ले रही है, मेरे से सजेशन ले रही है, मुझसे गाइडेंस ले रही है, बट वो बॉयफ्रेंड उसका और कोई है या गर्लफ्रेंड उसकी कोई और। तो यहाँ कई बार मैं स्टूडेंट्स को मेरे ये बताती हूँ कि आपको अपना शेड्यूल इम्पोर्टेंट बनाना जरूरी है। यू शुड हैव योर ओन प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटी आपकी बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड या आपका रिलेशनशिप है, या आपकी पढ़ाई, आपके करियर, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स। अगर आप बाकी चीजों को भी उतना इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके लाइफ में एक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या एक की वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को यूजुअली बताती हूँ कि डेवलप अ गुड हॉबी, गिव टाइम टू योर ओन बॉडी ऑल्सो, अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम दो, अपने पढ़ाई के लिए टाइम दो, और किसी एक आदमी को या किसी एक लड़की को इतना ज्यादा अपने लाइफ में इंडिस्पेंसिबल मत बनाओ ना आपकी पूरी लाइफ शैटर हो जा रही है, उससे रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से आपका पूरा साइकिल अफेक्ट हो। तो आज जितना मैं समझ पाई सपना के Reena, I लेक्चर think से your कि voice is जो not clear. Is it clear for everyone? I'm not able to hear Dr. Reena well. Is Yeah, it clear? I can Ma'am, hear. it's breaking. Yeah, it's breaking for us. आई डू नॉट नो व्हाई मैं तो उसको Yeah, so is it- थोड़ा सा और अभी ठीक है? हाँ better. हाँ, अच्छा, दोनों हेडफोन्स नहीं लगाए थे इस वजह से हो रहा होगा। तो एक्चुअली जो पेरेंट्स भी हेलीकॉप्टर टाइप करते हैं ना, हमेशा उनके ऊपर वॉच करते हैं। जो पेरेंट्स खास करके जब बच्चे बाहर जाने लगते हैं, कॉलेज में जाने लगते हैं, तो ऑल द टाइम, अभी जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि यू डू अ वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल करने से हमको जरूर पता चल जाता है कि बच्चे कौन सी जगह पे हैं और एक्सेप्टेबल जगह है या नहीं। पर ये बच्चों की तरफ से बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारी माँ को हम पर विश्वास नहीं है, हमारी माँ हमेशा हम पर शक करती है, हमेशा चेक करती है, हमारे फोन चेक किए जाते हैं। तो ये टू वे है, ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली इट इज टू वे। नोबडी शुड बी वेरी पॉसेसिव इन द रिलेशनशिप, खास करके जो वर्किंग मदर्स है, उनको लगता है कि उनके पास कम टाइम है, तो वो ज्यादा लिबर्टी देती है बच्चों को, ज्यादा पैसे देती है बच्चों को, सो दैट उनका जो एब्सेंस है इन द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, उसको वो किसी तरह से बैलेंस करने के लिए थोड़ा पैसे ज्यादा देती है या ज्यादा कुछ अच्छी अच्छी चीजें उनको ला करके देती है। तो ये सब चीज हम कुछ शुरू के टाइम में करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो आज बताया सपना ने, जो बताया कि हमेशा हमने अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए, एंड हमारी खुद की जो रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो and all the relationship in everybody's life is very important, not only your boyfriend, girlfriend, or not only parents, or not only siblings. Every relationship is equally important to everyone, and I think this much is enough for the day, and I now hand over the mic to secretary Yeah. of the anchor. Yeah, I think so. There was some issue with your audio, so I couldn't pick up many points. Sapna, you want to say something on her remarks because we couldn't really hear what she said. No, that was very well summed up. Summed up. Okay, fine. I'll just quickly go to question. Shubhangi's requested me to unmute her. She wanted to ask you one question. Yes. Shubhangi, over to you. Thanks, ma'am. Can you hear me, Sapna, ma'am? Yeah, a bit louder, please. Okay, ma'am. Speak a little louder, Shubhangi. Okay, ma'am. I don't understand how to ask, but my question is,
and don't express my feeling in front of my special one, only for this reason that I don't want to hurt my parents and I don't want to cheat them. Therefore, I'm avoiding that guy, and I don't want to think about this too more than that. My career is more important for me. That's why I avoided every feeling. How should balance this trouble, ma'am? I really like him, ma'am. Okay, what are you studying currently? Ma'am, I'm BCom graduate. You are a I'm BCom 21 graduate. years old. Okay, okay, okay. So, since you are already a graduate, do your parents talk about marriage? No, ma'am, I'm not ready for my career is left. No, no. Do your parents talk about marriage? You are not ready, but do they talk about it? ओके सो इसमें एक बात समझना जरूरी है कि आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आजकल हार्डली कोई रुक के सोचता है कि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा तो मे बी आई शुड नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड और वट एवर. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग. देयर आर टू थिंग्स इन दिस. एक तो आई थिंक यू आर एन एडल्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल जिस तरह से आप बात कर रहे हो. तो रिलेशनशिप इज योर चॉइस विच यू कैन ऑलवेज टेक अप. लेकिन आज जो तुम्हारी एज है उसमें सूनर और लेटर मैरिज इज गोइंग टू बी अ पॉइंट देयर वेरी सून. मतलब अगर आप 12th में होते और उस समय के कंपैरिजन में आज अगर आपको रिलेशनशिप करनी है तो मुझे लगता है कि यू शुड बी लिटिल अवेयर ऑफ व्हाट विल बी एक्सेप्टेबल इन योर फैमिली एंड व्हाट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. दो चीजें हैं इसमें कि अगर वो लड़का जो भी है, अगर उसका जो भी बैकग्राउंड है, जो स्टडीज है, एजुकेशन है, जो भी चीज है, अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो इज इट रियली अ गुड आइडिया टू गो अहेड? वन. दूसरा, हाँ आप चाहो तो अपने रिबेल करके आप उसके साथ में रह सकते हो, उसके साथ शादी कर सकते हो. यू आर एन एडल्ट, यू कैन डू दैट. बट क्या आप वो करने वाले हो, ये अपने आप को पूछो, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट. ओके तो यहाँ पर ये समझो कि अगर रिलेशनशिप में पढ़ना है और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डू यू रियली वांट टू गो थ्रू दैट पेन? ये आपका चॉइस है, क्योंकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी ही और उसमें फिर तकलीफ होने के चांसेस है. तो क्या ये करना क्योंकि आप सोच रहे हो इसलिए, नहीं तो ज्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं है, शुरू कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं क्या होगा. बट बिकॉज यू आर थिंकिंग एंड यू आर वेटेड फॉर सो लॉन्ग, तो प्लीज इस चीज का कंसिडरेशन रखो कि क्या क्या, क्योंकि बिकॉज सम फैमिलीज, सम कम्युनिटीज, इनको लव मैरिज ही नहीं चलता है. कुछ लोगों को अगर कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, वो इश्यूज होती हैं. किसी को पढ़ा लिखा लड़का है, कितना पढ़ा लिखा है, उस चीज की इश्यूज होती हैं. सो यू नो योर पेरेंट्स. तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से सोचो. एंड इफ यू थिंक दैट ही कैन बी, ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि जिसमें लिए आपके पेरेंट्स मना करें, तो थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम लगा के यू कैन टॉक टू दिस बॉय ऑल्सो कॉशियसली थोड़ा, क्योंकि आप शायद अगर इतने साल से लाइक करते तो कैसा है आपको पता होना चाहिए, किस तरह का लड़का है, कुछ करता है नहीं करता है, पर करियर के बारे में सीरियस है या नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स बहुत जल्दी कम हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली रियलिटीज के साथ में रहना पड़ता है. So, उसके साथ बात करने में, उसको पूछने में कोई हर्जा नहीं है. इफ यू फील दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, इतनी बहुत प्रॉब्लम मेरे फैमिली में नहीं जाएगी. Yes, ma'am, he is good in actually he is MBBS and he is doctor. He work well and So, और इससे कोई प्रॉब्लम मेरे फैमिली में प्रॉब्लम होगी मैम शायद. मतलब वो हर्ट हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहती. सिर्फ लव मैरिज है इसीलिए हर्ट होंगे कि कुछ और कास्ट वगैरह ये सब चीज का इशू भी है? कास्टिज्म भी है मैम. सो दैट्स व्हाई. तो देखो ये बहुत डेलिकेट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी डेलिकेट. मतलब आपको लगता है सब कुछ अच्छा है, तो कई बार क्या होता है कि अपना डिसीजन लेना भी जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि जीना आपको है उसके साथ में या जिस किसी के भी साथ में. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू फील दैट एवरीथिंग इज राइट एंड मे बी आई कैन मैरी अ गाय ऑफ माय चॉइस. बट आपको वो रिस्क लेने के लिए रेडी आपको फिर रहना पड़ेगा कि फिर आगे जो कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स माने ना माने, स्टिक टू इट एंड डू इट. उतनी हिम्मत आप में है या आप में नहीं है, क्योंकि अगर पेरेंट्स मानने वाले नहीं है तो वो पूरी तरह से फुल ड्रामा करेंगे.
दे विल इंश्योर कि तुम वो रिश्ता छोड़ दो, बट उस समय पे बहुत तकलीफ होगी ना, तुमको तकलीफ होगी, उस लड़के को तकलीफ होगी, तो वो इट्स नॉट वर्थ इट. तो अगर हिम्मत है तो आगे जाओ, और अगर हिम्मत नहीं है तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ाओ ही मत बात की, कंपैरेटिवली तकलीफ कम होगी. तकलीफ दोनों साइड होगी, जहाँ पे ज्यादा कम तो होगी. तकलीफ होगी, यस, तकलीफ हाँ, सबको होगी. लेकिन और yeah, ma'am. अगर बात आगे बढ़ाते ही नहीं हो तो सिर्फ तुम्हारे मन में ये जिंदगी में रहेगा, बट कंपैरेटिवली तकलीफ कम रहेगी. कम रहेंगे. Yeah, Right, ma'am, right. and career is most important. नहीं तो देखो, अपना आपके लिए यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. रिलेशनशिप में होने के बाद में तुमको करियर तुम करोगे नहीं, ये किसने कहा है? ये तो तुम्हारा चॉइस है कि तुम कितना देर उस लड़के को देते हो या सोचने में, डे ड्रीमिंग में देते हो. ये तो तुम्हारा चॉइस है. ऑल रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड फॉर योर करियर. अगर आप सिंसियर है तो आप करियर वैसे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी वजह से करियर क्यों जाएगा आपका? सपना, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, क्या मैं Yeah, पढूं ma'am, आपके nice लिए? to meet you. हाँ हाँ. एक क्वेश्चन है, मैम, फ्रॉम 1 month आई एम फीलिंग दैट माय बॉयफ्रेंड हैज बीन लूजिंग इंटरेस्ट और नॉट valuing me, not talking to me like he used to do. Should I talk to him or I am expecting more? ये क्वेश्चन किया है सिमरत चावला ने. सिमरत, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ भी सही नहीं लगता है तो बेस्ट थिंग इज टू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट. अपने मन में कुछ भी विचार बनाने की बजाय, अपने मन में कुछ भी सोच लेने की बजाय, विच इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप एनीवे, किसी दिन जिस दिन तुम्हारा मूड ठीक है उस दिन डिस्कशन करो, ताकि बहुत इमोशंस में आके वो पूरा मामला ना बिगड़ जाए. बट डू लेट हिम नो दैट दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. क्या ये सच है? क्या तुम सचमुच मुझसे दूर जाना चाहते हो? हैव यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी? अगर वैसा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. बात जरूर करना है कोई भी इश्यू अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन बात करने में और झगड़ा करने में बहुत फर्क होता है. सो टॉक, कम्युनिकेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, कुछ और Sapna, I do also believe love is a two-way street, constantly under construction. We can't be sensitive to pleasure without being more sensitive to pain. So यहाँ questions सभी ने आपको Dr. बहुत Reena, appreciate your किया voice है, is सपना. really not clear. Reena, can you just check your network? Voice is breaking a lot. Sapna, Here there's it one is more question. completely, यहाँ तो मुझे पूरा नेटवर्क मिल रहा है. I don't know. अब आवाज Voice आती है? for us is breaking. Clear nahi hai. So till she sorts out, Sapna, the next question is whether we can do you think today's generation is a bit less emotional or less attached to their parents, their friends, or to their partners? Do you feel that's the new change? No, that's not the thing. See, humans are humans. You cannot take out humans from anyone just because there is a evolution or modernization. Definitely not, but they want more from life than we wanted. उनको बहुत बचपन से बहुत एक्सपोजर है एंड दे वांट अ लॉट फ्रॉम लाइफ. और पेरेंट्स स्पेशली जो अभी के जो पेरेंट्स है, वो अभी तक उतने ये नहीं हुए हैं ओपन कि वो बच्चों के साथ में समझ के उनको आगे जाए. तो जब पेरेंट्स रोकते हैं बहुत तो ऐसा लगता है कि बच्चे पेरेंट्स से दूर जा रहे. बट इन माय एक्सपीरियंस चिल्ड्रन वांट टू बी अटैच्ड टू द पेरेंट्स. ये मैंने कितने बार देखा हुआ है कि मेरे पास में ऐसे बच्चे लाए जाते हैं कि जो पेरेंट्स कह रहे कि देखो झगड़ा करता है घर में, कल इसने माँ पे हाथ उठाया था और ये सीधा बोलती है, सब इस तरह की बातें में जब पेरेंट्स कहते हैं, और ये अकेले में बात करते हैं पेरेंट्स, और जब ये बच्चा मेरे पास आके बैठता है तो ये बच्चे का इनवेरिएबली एक चीज होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता. तो आजकल क्या हो गया है कि बच्चे को क्यों हम ब्लेम कर रहे हैं? आप घर पे भी हम लोग ही देख लो ना. बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उसके साथ में हमारा एक ही कॉन्वर्सेशन रहता है, वो तुम्हारी पढ़ाई, मार्क्स, एडमिशंस, क्या कर रहे हो, कहाँ टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, ट्यूशन गए या नहीं गए, ये एक्टिविटी हो गई, अभी बैडमिंटन गए नहीं तो अभी चेस खेलने नहीं गए. दिस इज द ओनली कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग. तो वो जो पहले की जनरेशन की मदर हुआ करती थी कि आजा बेटा अपन बैठते दोनों, ये तो हम भी नहीं रहे हैं, तो हम उनको कैसे बोल दें? It is not like that. It is that we are evolving, we are changing, we are different kind of parents and they are different kind of children, that is it. But they really want a lot of attachment. I see all of them coming to me are always feeling कि I'm not able to fulfill my parents' expectations. I feel very bad that I can't do for anything. ये वही बच्चे हैं जिनको माँ बाप गुस्सा कर करके लेकर आए हैं काउंसलिंग के लिए. But this is what they talk. So they are emotional. They want it.
बट हम ही जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लिनिकल हो गए हैं उनके साथ में। ऐसा Yes. ऐसा 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 कंपार्टमेंटलाइज लाइफ करके रखी हुई है उस सब चीज में, एंड देन वी ब्लेम कि ये इमोशनल नहीं है और ये प्यार नहीं करता, वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन देम, वी डोंट स्पेंड टाइम विद देम। फिर एक दिन जब उसको बहुत फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो फिर हम कंप्लेन करते हैं इसको तो माँ बाप से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास में काम बहुत है करने के लिए तो हम उसमें बिजी है, हमारे पास काम नहीं होता तो हम व्हाट्सएप लेकर बैठते हैं, और जब हमको व्हाट्सएप के लिए टोका जाता है तो हम कहते हैं कि अरे काम का है। So we are also the kind of people who are not giving all the time to our children that is needed. So I think it's no sense blaming. We just have to accept and evolve and change according to the time. Right. Srushti Rahate, I have unmuted you. She wanted to ask you a question. Srushti? Srushti, go ahead. I had unmuted you. Okay. Good evening, ma'am. Actually, I want something कि जैसे अभी रिलेशनशिप भी है और फैमिली भी है और स्टडिंग भी है, तो इन तीनों को कैसे मैनेज करें? बहुत सिंपल है, जिस समय जो कर रहे हो वो करो। क्योंकि इधर पे फैमिली का यानी दोनों तरफ यानी हर्ट नहीं होना चाहिए कि इधर फैमिली भी है और इधर रिलेशनशिप भी है, तो देखो कैसे हैंडल करें? कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें तुमको ऐसा नहीं है कि जितना टाइम दोगे उतना तुम उनसे प्यार कर सकते हो या उतना अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकते हो उनके साथ में। When you spend time with them, do you spend good time with them? भले ही वो 5 मिनट का हो, भले ही 10 मिनट का हो, आपके पास में टाइम नहीं है, आप ट्यूशन भी जा रहे होंगे, भी कर रहे होंगे, तो आते जाते मदर को सिर्फ मदर रसोई में है, उनको पीछे से एक हक कर दिया एंड आई लव यू मम्मी बोल के भाग गए ना, तो भी इट इज मोर देन इनफ। बहुत है। हम ये सब एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि किस तरह से हम एक्सप्रेस करें कि हमारे पास टाइम है। इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस। किसी दिन अगर जैसे संडे का दिन है, क्लासेस नहीं है, तो एक मम्मी से डेट कर लो कि मम्मी एवरी संडे विल बी आवर डेट, चाहे घर में बैठो चाहे बाहर जाओ कहीं पर भी, पर 1 घंटा मम्मी के साथ में। जरूरी नहीं है रोज आप ये करो, हफ्ते में 1 दिन किया तो भी चलता है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमन बींग्स को ये समझना जरूरी है कि लाइफ जो है वो ऐसे सीक्वेंशियली नहीं चलती। एक चीज हो जाएगी ना, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर चौथा। एवरीथिंग रन्स पैरेलली। आपको पढ़ाई भी तभी करनी है, पेरेंट्स को भी तभी देखना है, लव रिलेशनशिप्स भी तभी करना है, मस्ती भी तभी करनी है, फ्रेंड्स के साथ भी तभी जाना है। इट इज ऑल गोइंग टू बी पैरेलल थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये समझ लो और कंपार्टमेंटलाइज करने का डिसाइड करो कि इफ यू आर सिटिंग डाउन टू स्टडी, वो 2 घंटे के फोन स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट पे कहीं छुपा के रख दो, सो दैट इवन इफ योर बॉयफ्रेंड कॉल्स तो आप उस फोन को हाथ नहीं लगाएं। तो यू आर गिविंग जस्टिस टू योर स्टडी। फोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप नहीं भी करोगे लेकिन कोई करता है तो आप उठा लेते हो। सो Yes, मेरा ma'am. सिंपल सजेशन ये है कि उसको लॉक करो, ठीक है, यू डोंट वांट टू शो टू एनीवन, उसको लॉक करो, साइलेंट पे डालो और उसको जाके अलमारी के अंदर रखो। 2 घंटे के बाद खोलोगे तो भी वो मैसेजेस उसमें रहेंगे ना। एंड देन वन मोर थिंग, अगर आपके बॉयफ्रेंड को आप ये बताते हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक फोन पढ़ाई करती हूँ, कॉल मत करो, या इतने बजे से इतने बजे तक के साथ कॉल मत करो, और ये बात अगर वो नहीं समझना चाहता है और गुस्सा हो रहा है, प्लीज सोचना इज द राइट पर्सन फॉर यू। आपकी तरक्की ma'am. आपको होना ही नहीं चाहता तो इज द राइट पर्सन। ये भी सोच। एक्चुअली मैम जैसा मेरा रिलेशनशिप भी है, तो वो एक्चुअली मुझे उसके साथ में मैरी भी करनी है, तो फिर कहने घर वाले भी तैयार नहीं होंगे लव मैरिज के लिए, और कास्ट का भी प्रॉब्लम है। आज क्या करते हो तुम, अभी क्या करते हो ये बताओ मुझे। मैं एक्चुअली अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ मैम। करियर बनाना है श्रुति? यस मैम। तो ऐसा है, अभी तुम करियर पे फोकस करो। जिस दिन तुम्हारा करियर बन जाएगा, तुम इम्पोर्टेंट हो जाओगे, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। आज से मत सोचो कि पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, क्यों डिसीजन ना। और दुनिया भर के सारे पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे। तो एक बार अगर देखेंगे कि आप अपने हस्बैंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में खुश हो, तो वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले अपने करियर पे फोकस करो। अगर खुद का डिसीजन लेना है लाइफ में आगे जाके, तो वेरी स्ट्रांग इन करियर। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप गड़बड़ भी हो गया उसमें,
तो आपके पास में इंडिपेंडेंटली खड़े होने के लिए अपनी ताकत होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, अपना पैसा होना चाहिए. Focus on that at this point. Right, very nice. Actually, I'm so liking this interaction, girls asking these sweet questions. I'm so happy even one or two girls have benefited from this session. हाँ, अपना हो गया, वसूल हो गया ये session, ऐसे मैं समझती हूँ. Dr. Vaishali Khandai, you're unmuted. Please go ahead. Yeah. Hi, Sapna. Hi. Hi, Sapna. This is Dr. Vaishali Khandai. I just wanted to know ki, how do you grade? I mean, how do you react to live-in relationship? I mean, what is which is so common nowadays in metro cities. So, do some couples come to you for this? Ki bhai, we are in live-in relationship, or abhi hamara we are not going well together. I mean, what kind of stress or emotional stress they go from this relationship, or whether we should allow our children to go in for that, what advice we should give them regarding this. I just wanted to know this. See, these are matters in which you can never say that this is 100% right or this is 100% wrong. It always is going to depend upon the person involved in it. उनकी maturity कितनी है? Live-in relationship के लिए maturity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. If you see that your child is mature enough, then I think there should be given a chance if they want to try a live-in. Because a live-in के बाद में breakup is much easier than getting married and creating all that mess, social and personal, and then getting out. Yes. मुझे लगता है कि अभी we should open up and we should let our children try that and do that, because this life is very different now. हम उस एरा में नहीं रहे हैं कि जैसे भी है शादी चलानी ही है. उस एरा में हम है नहीं. ये बच्चे अगर दोनों भी उसमें satisfied नहीं है तो they are not going to. So it doesn't matter if they want to see. क्या है live in का एक ही problem है, that is sex, which they will be anyway doing. अगर live in तक बात आई है तो they are definitely sexually involved. So और क्या बचता है? Give them a try. I think they deserve it. Commitment part. See, commitment वैसे ही हमने अपने बच्चों को. What I feel. कमिटमेंट हमने वैसे ही अपने बच्चों को सिखाया नहीं है. हमने अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, दूसरे का सेटिस्फैक्शन, खुद को बदलना, ये सारी चीजें सिखाई थी. तो उनको साथ में रह के देखना जरूरी तो है कि भैया मैं किसी और को टॉलरेट कर सकती हूँ या नहीं अपने कमरे के अंदर. अभी हमारे बच्चे हमको अपने कमरे में. So true. They have to give it a try, because we cannot. They will form their own rules because we are not bringing them up the way that we were brought up. Yeah, but then in our society, I mean, what Nagpur, I mean, whatever is happening, Mumbai or big cities, we don't know, but Nagpur is still a very small state. This I'm very small. I mean, people know you very well. Sab, you know personally to every person. Sab tumko jante hai. Such a small place, so it's very difficult to, I mean, accept what Western people or what the big city people do. I mean, what I feel. So Vaishali, what I छोटे feel. शहर. नहीं, मुझे क्या लगता है वैशाली कि now if we are the educated parents of today, मैं सबके लिए तो बात नहीं कहूँगी. Educated and understanding parents अगर हम हैं, so we should learn to stand up for our own children also if they are taking mature decisions. वो चाहे society माने चाहे नहीं माने. Okay, so, yeah, that is very true. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, thank you, Sapna. Thank you so much. Yeah, तो हमको समझाना जरूरी है. Voice is. If it doesn't work, right. Doesn't work, तो उसके क्या side effects हो सकते हैं? We should be prepared for that. We have to talk to them to ensure that. Yeah, because if the female is committed. Yeah. Your voice is breaking, Sapna. Okay, can you hear me now? Nee, yeah, it's better. The most severe problem is if the male partner is committed and the female is not committed. Yeah. Or vice versa. So it will be very difficult for that partner who is committed after breakup अगर हुआ तो फिर से life को ये करना, फिर किसी के साथ relationship रखना. I mean, don't you think it will become a bit difficult? Like that's why I said that कोई भी इसमें right या wrong answer नहीं है. Either way कि ये गलत है. But we can talk to our children about all these things कि बाद में अगर नहीं चलता है तो you have to know that you will need some time to work on yourself. You have to ensure to talk to them that please ensure कि pregnancy वगैरह वाला कोई चक्कर ना हो इस बीच में. ये सारी चीजें हमको बताना जरूरी है. We have to talk to them about these things. Okay. Thank you so much. Thank you. So I don't find any more questions in the
Yeah, there's one question. What should we do to always stable relationship ourselves? Divyanka, your question is not really clear. She's saying, what should we do to always stable relationship with ourselves? I think What you can decipher from that? when I was talking about the relationship with self, that is what she's asking. How to have a good relationship with self. I would suggest one thing is, for having a good relationship with yourself, you need to know yourself. The first step is you need to know yourself. For that, you have to spend some time alone with yourself. Alone means without WhatsApp, Instagram and Snapchat. क्योंकि जब हम किसी भी तरीके से बाहर के वर्ल्ड से जुड़े होते हैं तो हमारा इंटरनलाइजेशन बंद हो जाता है. सो इफ वी कैन सिंपली स्टार्ट विद 1 hour विदाउट गैजेट. दैट्स इट. गैजेट मतलब टीवी भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं. खुद के साथ में टाइम स्पेंड करो. One thing. Second step is a very, very simple and a cliche exercise, but the most important is start writing your strengths and weaknesses, your plus points and your minus points according to you, because this is an exercise of knowing yourself. क्योंकि अगर हम किसी और से प्यार भी करते हैं तो पहले उसकी खूबियां और प्रॉब्लम्स जानने के बाद करते हैं. तो पहले खुद से प्यार करना है तो खुद को जान लो. So just keep on making a list of your strengths and weaknesses. करते रहो उसको, and just be little careful कि जब आप अपने weaknesses लिखते हो तो ये ध्यान में रखें कि ये किसी और ने बताया हुआ नहीं होना चाहिए. You write what you feel is good or not so good about yourself. उसके बाद में the next step would be to see that there are many good things about you. जब आप लिस्ट ईमानदारी से बनाते हो, there will be many good things which will come out of you. पहले दिन नहीं आएंगे, पहले दिन सिर्फ आपको बुरा बुरा दिखेगा आपका. फिर धीरे धीरे आपकी अपनी अच्छी चीजें बाहर आएंगी. Then you have to do a self talk, look at that list every day and tell yourself that I have lots of good qualities. जब कुछ चीजें हैं जो मुझे खुद के बारे में पसंद नहीं है, let me change it. एंड एक या दो चीज सेट करके उसके ऊपर काम करना शुरू करो. सपोज इफ यू फील कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. इट्स नॉट अ बिग डील. इट टेक्स 6 months. 6 महीने के ऊपर लगता नहीं वंस यू डिसाइडेड. और 6 महीने के बाद में आप उसको नेगेटिव साइड से निकाल के पॉजिटिव की लिस्ट में ऐड कर सकोगे कि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है. सो इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, यू लाइक मोर एंड मोर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. You will know yourself more and more. फिर आपको अपने आप को बेटर बनाने की और इच्छा होगी, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की और इच्छा होगी. And that's when you start liking yourself and you start respecting yourself. Dr. Vaishali asked you one more question, Dr. Sapna, that can we groom our children at an early age? Maybe some exercises in school or something like that. Can we do something when they're small and young? See, the thing is that we can start pretty early, but let's forget about the schools, because if we go that way, it is never going to happen. The whole system thing is very bad, but we can do a lot of things as parents. We can definitely do a lot of things as parents, because jitni bhi life mein problem hai na, they are all based in low self-esteem. कोई भी प्रॉब्लम ले लो आप, चाहे वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, चाहे घर में प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप की, एवरी प्रॉब्लम इज रूटेड इन लो सेल्फ एस्टीम. और लो सेल्फ एस्टीम जो है वो बचपन से ही आने लगता है, क्योंकि बचपन में एक छोटा बच्चा जो होता है उसको कंटिन्यूअस बाहर के लोग डेफिनेशंस देते हैं, घर के बाहर के सब लोग, कि ये अच्छा, ये बुरा, काला अच्छा, कि गोरा अच्छा, और मोटा अच्छा, कि पतला अच्छा, लंबा अच्छा, कि छोटा अच्छा, 90% अच्छे और 46% बुरे. दिस इज कंटिन्यूअसली द डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन इन ब्लैक एंड व्हाइट टू द चिल्ड्रन, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ इमेज बनाता है. And this self image is usually negative, क्योंकि हमेशा आपके पास everyone will not have everything. तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बहुत सुंदर दिखने में है तो उसको सेल्फ एस्टीम की इशू नहीं होगी, उसको ज्यादा इशू होगी, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन ज्यादा होता है दुनिया में. तो अब हमको हमारे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना है. दिस सेम थिंग्स व्हिच आई वाज टेलिंग टुडे इज हेल्पिंग चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स. बचपन से बहुत छोटा बच्चा भी अपने प्लसेस और माइनसेस बता सकता है. 5 साल का भी बच्चा होगा तो लिख नहीं सकता, तो आप बोलिए उसको, अच्छा तुमको खुद के बारे में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, एंड देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू दैट चाइल्ड कि देखो तुमने ये चीज तो लिखी नहीं इसमें, कि तुम्हारे पास में बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स है. दिस इज द मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग व्हिच पीपल नेवर रियलाइज. बट वो अगर आप उनको बताते हो कि दुनिया में बेटा कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास पेरेंट्स ही नहीं है, या आपको एजुकेशन में स्कूल में अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, दुनिया में कई बच्चे ऐसे जिनको एजुकेशन नहीं मिला, सो प्लीज फील गुड अबाउट इट. तो इस तरह की कई एक्टिविटीज हम बचपन से अगर बच्चों के साथ करते हैं तो सेल्फ एस्टीम उनका बेटर रहने की पॉसिबिलिटीज है. और बेटर सेल्फ एस्टीम पीपल ऑलवेज हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस जो इतने कम टाइम में बताना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. देयर इज लॉट टू वर्क. Since there are no questions, just one point I want you to touch for it. I think it will be beneficial for all of us. All of us have some bitter experiences in life, and we always say
forgive and move on. But whether how it is possible to do that in real life, forgive, forget, and move on, or what they should do so that the relationships are maintained. So number one is मैं forget की कभी भी suggestion नहीं देती हूँ, because ये memory cells body में form होते हैं, दिमाग में memory cells, and memories are always going to be remembered. I remember things from when I was 2 years old. So just saying someone कि भूल जाओ, doesn't happen like that. You don't have to. But एक चक्कर क्या है कि जब हम भूलने की भी कोशिश करते हैं ना, जो चीज के ऊपर बहुत फोकस देके भूलने की कोशिश करते हैं, वही चीज हमको दिन भर याद रहती है. So don't even try to forget or any of those things. Just go about your life. अपनी लाइफ चलाओ और लाइफ आगे बढ़ाओ. इसमें जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप अगर होता है तो मेरा एक सबसे बड़ा सजेशन होता है कि प्लीज इसको इस तरीके से देखो. 2 टोटली अलग पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, टोटली अलग एनवायरनमेंट से आए हुए, जो एक दूसरे को सिर्फ 1-2 पॉइंट जान के एक दूसरे के पास आके रिलेशनशिप बना लिए थे, इनका रिलेशनशिप नहीं चलने के चांसेस आर मच बिगर देन द रिलेशनशिप वर्किंग. लॉजिकली आप सोच के देखो कि आपको एक दो ही चीजें पता है. जैसे आप साथ में रहने लगते हो, आपको एक दूसरे की बहुत चीजें पता चलने लगती है, जो बहुत सारी चीजें उसमें से पसंद नहीं आने के भी चांसेस है. सो व्हाई मेक सो मच ऑफ अ बिग इशू कि मेरा रिलेशनशिप टूट गया. रिलेशनशिप तभी टूटेगा जब आप में कंपैटिबिलिटी नहीं है. इट्स नॉट बिकॉज वन पर्सन इज बैड और वन पर्सन इज गुड और एटसेट्रा, या किसी ने कुछ किया. सिंपल थिंग इज वो व्यक्ति ऐसा है, तुमको चलता है क्या? उसको बदलने की कोशिश करोगे, फिर वो उसी के ऊपर दोष देगी कि वो समझता नहीं है, एंड देन यू लिव अनहैप्पीली अबाउट इट. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप में हम ग्रो करते हैं. रिलेशनशिप में ग्रो करते समय हम अपने आप को जानते हैं कि हमको क्या चलेगा क्या नहीं, और उस व्यक्ति को जानते हैं कि वो उसमें फिट होगा या नहीं होगा. सो रिलेशनशिप्स ब्रेक, इट्स नॉट अ बिग डील. डोंट कीप अ कंडीशन कि मेरा तो चलना चाहिए, दूसरों का चले ना चले. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तकलीफ थोड़ी कम होगी. तकलीफ होगी, अगर प्यार किया है तो तकलीफ सहने की आदत डालो. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. एंड फॉरगेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन आई गिव यू. अगर आपके पास एक पाइप है और उसके अंदर बीचों बीच कुछ फंस गया है, उसमें से कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, तो न इधर से हाथ जा रहा है न इधर से हाथ जा रहा है, तो आप निकालोगे कैसे उसको? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो द सिंपल थिंग इज, एक तरफ से कुछ भी चीज उसमें ठूसते जाओ. जब चीजें एक तरफ से बहुत भर दोगे तो दूसरी तरफ से अपने आप वो बाहर निकलने लगेगा. सो फिल इन योर लाइफ विद एक्टिविटीज डिफरेंट. जो क्लासेस तुमको ज्वाइन करने थे वो ज्वाइन करो, नई चीजें सीखो, मम्मी के साथ में किचन में काम करो. डू एनीथिंग. ऑटोमेटिकली विद टाइम दिस पेन विल गो ऑन रिड्यूसिंग स्लोली. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स अ मैकेनिज्म. ऐसा ओवरनाइट नहीं होता कि मैं इसको कैसे भूल पाऊं. Yeah, point well taken. Yes. I don't find any more questions in the chat box. Rina, if you have to give any concluding remarks, or we'll move on to our vote of time. Yeah, Dr. Bhave, yes, 1 minute. Yeah, Dr. Bhave. Rina, 1 minute. Okay. Yes, Dr. Bhave. I have asked you to unmute. Unmute, sir. You are mute. You're on mute, sir. I'm asking you to unmute. Just unmute. Yeah. Yes. सर बोलिए. हेलो. हाँ, हेलो सर. सपना जी, जी सर बोलिए. आपको देख के बहुत अच्छा लगा. जी मुझे भी अच्छा लगा आपको देखकर. बहुत समय हो गया. हाँ, हम एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं. जी जी जी. और बहुत अच्छी बातें की आपने, और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें की, इसीलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ. और मैं हमेशा से ही आपको बहुत मानता हूँ, बिकॉज यू आर अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी. Thank you so much. Thank you. And you have maintained yourself. I know it is extremely difficult. and today this session has been successful. The sign of it is you were bombarded with questions from all sides, and that's a very healthy sign. Thank you so much, Vaidehi ma'am. I just wanted to express myself. Thank you, sir. Yes, Rina. Yeah, Rina. Yes, so today's the gist of the lesson, or gist of today's session, we can say that we are ourselves responsible for our own happiness. We should not have much expectation from the other person, and we should take life as it is. जो है, जितना है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करते आएंगे तो हमारा कंपैरिजन कम होगा और हमारे ओवर एक्सपेक्टेशंस कम होंगे. एक्सपेक्टेशन तो रहने
चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस कम होंगे और प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए हमको। तो स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज वाया दिस सेशन आई वुड लाइक टू गिव कि दे शुड हैव दैट टू डू लिस्ट। उनको पहला सबसे पहले उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, स्टडीज है, करियर है, फैमिली है कि रिलेशनशिप। बैलेंसिंग तो हर जगह जरूरी है, बट आपको उसको एक सेपरेट बॉक्स देना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि वीकेंड में लोग छुट्टियां मना जाते हैं, 5 दिन पूरा लग के काम करते हैं, वैसे ही 5 दिन लग के पढ़ाई करनी है, 5 दिन लग के अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, एंड 1 or 2 days they should enjoy the relationship. तो मुझे ऐसा लगता है, and it was really wonderful to have Sapna today with all of us, and students बहुत सारे क्वेश्चंस लेके दिमाग में बैठे होंगे, but I think time is not enough to have all the questions to be answered, और कुछ लोग hesitate भी करते होंगे, तो सपना शर्मा should give some way कि how they can address their queries to you. अपने क्वेश्चंस अगर उनको पर्सनली बताना होगा या यहाँ अगर फोरम में नहीं डिस्कस करना चाहते होंगे, तो इज देयर एनी वे कि दे कैन कांटेक्ट यू? या सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं चैट बॉक्स में ना एक व्हाट्सएप नंबर टाइप कर रही हूँ। ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए है, इस पे कॉल करने का नंबर नहीं है। So if you want to come for counseling or anything, you can go on this number, write a message on this number, या कुछ discuss भी करना हो तो। And other than that, I have my YouTube channel, my Facebook page and my Instagram page, जिसके ऊपर मैं बहुत frequently videos, articles post करते रहती हूँ। ये सारे channel DR सपना शर्मा, डॉक्टर सपना शर्मा के नाम से आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। So you can also go and check that out if you want more topics to discuss. I'm just writing this number. क्योंकि 1-to-1 बच्चे बात करना चाहेंगे आपसे स्पेशली ऑन देयर लव रिलेशनशिप, तो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप इस तरह का आपका कोई पोस्ट कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई अलग अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपका पोस्ट को आप डाल सकें तो। ओवर टू यू राजश्री एंड वैदेही। Thank you, Reena ma'am. Thank you for your inputs. And thank you, Sapna ma'am, for such a fabulous talk, which tells us that the only constant is change. So we should keep changing and be acceptant about whatever is coming our way. And we should value relationships, but we should value our own happiness also. So Rahiman धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटन पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. So please follow this, and I would like our very charming secretary, Dr. Rajasi ma'am, to give her vote of thanks. Thank you so much, Parul. Sapna ma'am, it has been a fantastic session. Absolutely. Thank you. I mean, as Dr. Bhave sir rightly pointed out, you could see it from the way in which the girls are interacting and typing messages in the chat box and thanking you profusely. I'm sure your giving their WhatsApp number is going to help a lot more. Really appreciate the way in which you have considered and told about all the finer aspects of all the 4 very important aspects of relationships: parents, peers, lovers, siblings. I think in any person's life, these 4 relationships form the core group, the core people that makes your sanity, maintains your sanity and maintains the quality of your life. And it is so important to balance relationships with them. Thank you so much for your valuable inputs. We look forward to having more such fruitful sessions with you in future for sure. Yes, would love to. Thank you so much, Dr. Reena Saha, madam. It has been really nice to get inputs from you. Unfortunately, in few lines we could not hear because of some technical error, but your inputs were very well taken and really appreciate your efforts. Thank you. You have been a part of our Navratri journey all the days. You have been with us. We really appreciate your efforts and your encouragement and support.